بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 21 جولائی ہے سال 2022۔ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، پرویز الہی یا حمزہ شہباز؟ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جس پر پاکستانیوں کی اس وقت نظریں جمی ہوئی ہیں۔ لیکن آصف زرداری نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور حمزہ شہباز کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے ساتھ ہی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کے ذمے کچھ رابطے ہیں، کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نئے چیئرمین آفتاب سلطان کون ہے؟ یہ نواز شریف کے کس کیس کے اندر شریک ملزم تھے؟ نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے ان کو کس طرح نوازا، اور اس معاملے پر اب ایک نیا بھونچال کیوں ہے، اور عمران خان اس کو چیئرمین نیب کے طور پر کیوں قبول نہیں کر رہے؟ انتہائی عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف جب سے اسمبلی سے باہر آئی ہے اور دوبارہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اس کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر دو دھڑے ہیں۔ ایک دھڑے کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں واپس قومی اسمبلی میں جانا چاہیے، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبران کی تقرری تھی۔ اسی طرح نیا چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر آلریڈی نون لیگ کا حامی ہے۔ تو اگر اسی طرح ہم اسمبلی سے باہر رہیں گے تو یہ سارے کام آسانی کے ساتھ ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مل کر شہباز شریف کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی جو اگلا الیکشن ہے اس میں یہ ہمیں نقصان ہوگا۔ دوسرے دھڑے کا کہنا ہے چونکہ یہ امپورٹڈ ایک سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو تبدیل کیا گیا ہے اور ہمارے ہائی مورل گراؤنڈ پر ایک اپنا بیانیہ ہے، اس لیے ہم اس اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے۔ اب اس معاملے کا جو نقصان ہو رہا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک نئے چیئرمین نیب تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ وہ چیئرمین نیب ہیں جو خود نیب کے ملزم ہیں، اور نون لیگ اور مریم نواز کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ اس وقت آفتاب سلطان کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے تل گئے ہیں۔ انہوں نے جو ہی ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی ٹویٹر پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا گیا ہے جناب، بڑے زبردست نیک آدمی اب آ گیا اور اب یہ کسی کی نہیں سنے گا۔ جبکہ نواز شریف، آصف زرداری جس شخص پر دونوں راضی ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب صاحب کیسے ہوں گے۔ اب کس کیس کے اندر یہ نواز شریف کے شریک ملزم تھے، اور یہ آفتاب سلطان دراصل ہیں کون؟ اس حوالے سے کچھ بنیادی معلومات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ قومی احتساب بیورو اس کی ایگزیکٹو کے اجلاس کی پریس ریلیز ہے 22 اکتوبر 2020 کی، جس کے اندر بتایا گیا کہ ایگزیکٹو بورڈ کا ایک اجلاس ہوا ہے نیب کا، چیئرمین نیب کی زیر صدارت، اور اس کے اندر قومی احتساب بیورو نے کہ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم اعزاز احمد چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ آفتاب سلطان، سابق ڈی جی آئی بی اور فواد حسن فواد، سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ملزمان پر مبینہ طور پر غیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے غیر قانونی طریقے سے 73 سیکیورٹی گاڑیاں خریدنے کا من پسند افراد کو یہ یہاں پر نوازنے اور ان کے غیر قانونی استعمال کا الزام ہے، جس سے قومی خزانے کو 1952.74 ملین روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ آگے انہوں نے پوری یہ ڈیٹیل دی ہے۔ اب یہ نواز شریف کے ساتھ شریک ملزم وہ رہے ہیں، اور ان کو آئی بی کا چیئرمین نواز شریف نے ایکسٹینڈ کیا، آگے آصف زرداری نے بھی، اور یہ اتنے چہتے ہیں کہ اب میں آپ کے سامنے رکھوں تھوڑا سا، یہ انتہائی معلوماتی چیزیں ہیں۔ آفتاب سلطان یہ پولیس سروس پاکستان کے گریڈ 22 کے افسر تھے، اور یہ سابق آئی جی پنجاب سمیت دیگر عام عہدوں پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو یوسف رضا گیلانی نے آفتاب سلطان کو ڈی جی آئی بی تعینات کیا، تاہم بعد میں راجہ پرویز اشرف نے آفتاب سلطان کو ڈی جی آئی بی عہدے سے ہٹا دیا۔
2013 के आम इंतखाबात हुए, यानी परवेज अशरफ जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने इनको कबूल नहीं किया। 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो आफ्ताब सुल्तान को दोबारा DGIB लगाया गया। अगस्त 2014 को जब इमरान खान और डॉक्टर ताहिर कादरी धरना दिए हुए थे तो आफ्ताब सुल्तान IB चीफ थे। आफ्ताब सुल्तान ने 2014 के धरने को नाकाम करने के लिए कुछ PTI के धरने के दौरान कुछ ऑडियो टेप्स पकड़ी थी। उन्होंने वो टेप नवाज शरीफ को फराहम की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत में ये मामला काफी गर्म रहा। अगर 2002 की बात की जाए तो परवेज मुशर्रफ सदर बनने के लिए रेफरेंडम करवाया और उस वक्त कहा गया जी इन्होंने हुक्म अदूली की है और ये उसको कामयाब करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया असर और रसूख। अब यहाँ जो है ये वो शख्स है, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान को अपना मुआविन खसूसी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया और फिर जो है चेयरमैन नैब इनको बनाया गया है, तो ये राजी हो गए मौसूफ। अब ये आफ्ताब सुल्तान के करीबी जराए जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये बंदे बड़े जबरदस्त हैं, किसी के खिलाफ जो है नाजायज मुकदमा नहीं बनाएंगे। तो एक पूरा बायोडाटा जो है जिस शख्स को दोबारा IB जो है वो हेड लगाए नवाज शरीफ और फिर वो टेलीफोन टैप करे और सारा काम सर अंजाम दे, वफादार हो, और उसके लिए मरियम नवाज का पूरा सोशल मीडिया जो इस वक्त हेड हैं और सारी टीम मिलकर, और गरीदा फारूकी, आसमा शराजी से लेकर उमर चीमा तक सारे वो तबला बजा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि नैब के मुल्जमान जिस तरह अभी नैब ऑर्डिनेंस के अंदर उन्होंने तरामीम की, जिस पर जो दफा लगती थी वो मुल्जमान बैठे हुए थे और बैठकर अपनी अपनी दफा वो खत्म करते गए, तो पूरा नैब ऑर्डिनेंस का हुलिया बिगाड़ दिया। अब इसी तरीके से ये एक नैब के मुल्जम साबित हुआ है, जुर्म नहीं हुआ। बहरहाल इमरान खान के मुखालफ होने की वजह से ज़हनी तौर पर इन साहब को अपॉइंट किया गया है ताकि ये बदले लें। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है, इसको चैलेंज करने जा रही है PTI और अदर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरखास्त दी जाएगी कि नैब मुल्जम जो है उसको चेयरमैन नैब बनाना ये बहुत बड़ा एक भोंडा मजाक है और राजा रियाज को साथ मिलाकर ये सारा जो खेल है वो खेला गया है। दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आसिफ जरदारी को बड़ा हीरो बनाया गया कि ये खरीदो फरोख्त बड़ी अच्छी करते हैं और इनके पीछे कुछ थपकी भी है। गुज़श्ता रोज जो है वो इल्ज़ाम लगाया जिस तरह शहीन सहबाई ने, तो अब ये जो है वो लड़ाई लड़ेंगे और बड़ा इस पर शोर था। लेकिन चूंकि PTI और काफ लीग वो अपने बंदे पूरे कर चुके हैं और मजीद जिन जिनको नामालूम नंबर से धमकाया जा रहा है, कालें आ रही हैं, वो भी डट गए हैं। तो आसिफ जरदारी मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुके हैं। उन्होंने जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और हमजा शहबाज को अमली तौर पर खुदा हाफिज कह दिया है कि हमजा शहबाज अब आपका पंजाब का जो खेल है वो खत्म हो चुका है, मेरे बस से बाहर है। और यकीनी तौर पर वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी भी शुजात हुसैन से राब्ते किए जा रहे हैं, कुछ लोगों से बराह रास्त, कुछ से इनडायरेक्ट राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन इस मरतबा जो PTI है उन्होंने अपने बंदे पूरे कर लिए और परवेज इलाही और आगे ओन अब्बास पब्बी जो जिम्मेदारान है 10-10 बंदों का जो मुतलका इजला का ग्रुप है, जो एरियाज हैं, उनके अंदर उन पर नजर रखी हुई है। एक कमरे में आग लगी है लेकिन वो रूटीन के मुताबिक लगी है, काबू पा लिया गया है, वो रुकन असम्बली को नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि नून लीग की ज़हीम कादरी की जो ज़ौजा उज़मा ज़हीम है उनको कोरोना हो गया है, ज़ाहिर है अब ये भी एक उनकी सीट और मसला बना है। अगर एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने PP7 के अंदर नून लीग को फायदा दिया है तो दूसरी तरफ जो है वो फिर नुकसान हो गया है। तो हालात बड़े टफ हैं, होने को तो सियासत के अंदर कोई भी हरफ आखिर नहीं होता, किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है। लेकिन इस वक्त के हालात के मुताबिक कप्तान ने जिस तरह दबाव बढ़ाया, अभी लाहौर के अंदर, आज लिबर्टी चौक में, इसी तरह इस्लामाबाद के F9 पार्क में, और हम इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद हैं। मौसम आप पीछे बैकग्राउंड के अंदर देख रहे हैं। F9 पार्क से भी फैसल तारड़ साहब और मैं और पूरी हमारी जो टीम है वहां से लाइव कवर करेगी और आपको बताएगी कि पाकिस्तान के शहरी जो ये मैंडेट चोरी किया जा रहा है उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अब यहां जो है वो सूरत हाल ये है कि जरदारी जो बड़ा खतरों का खिलाड़ी, एक जरदारी सब पर भारी है, तो कप्तान के सामने हाथ खड़ा कर चुका है। बंदे पूरे हैं, इमरान खान ने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं, एक एक बंदे से मुलाकात हो रही है, अगली तरतीब सेट की जा रही है। अब हमजा शहबाज
तो गया, लेकिन अगली जो हिकमत अमली है वो बड़ी जबरदस्त है। परवेज इलाही वजीर आला होंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से कैसे हटाना है, इस मंसूबे पर भी बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर जो है वो कहा गया है कि ये कमेटी जो है ये राब्ता करेगी मुख्तलिफ जमातों से, ताकि शहबाज शरीफ अगर इख्तदार नहीं छोड़ता, चूंकि इखलाकी कानूनी आइनी एतबार से किसी भी तरह जब अवाम ने मुस्तरद कर दिया है तो अब उसका वजारत उज़्मा पर रहना ये दुरुस्त अमल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो मजीद तजलील के साथ जाना चाहते हैं तो कहा गया है कि पंजाब में फतह के बाद PTI का वफाक का रुख करने का फैसला कर दिया गया है। BNP, बाप और जमात इस्लामी से राब्तों का फैसला किया गया है। चेयरमैन PTI ने कमेटी बना दी है। इस कमेटी के अंदर परवेज खटक की सरबराही में ये कमेटी है, हुकूमती इत्तेहादियों से ये राब्ते करेगी। कमेटी में असद कैसर, फवाद चौधरी, असद उमर ये भी शामिल हैं। कमेटी इन जमातों को हुकूमत छोड़ने पर कायल करेगी। तो परवेज इलाही के वजीर आला बनने के साथ ही मरकज से शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाने का ये जो हिकमत अमली है, मंसूबे पर बाकायदा तौर पर कमेटी बनाकर जो इत्तेहादी हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे। और ये मजबूरी होती है, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर कोई दुश्मनी नहीं होती, फिर भी आपको राब्ते करने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त इमरान खान जो है उनका आपको इल्म है तोती बोल रहा है और सारी चीजें दुरुस्त सिमत के अंदर बढ़ रही हैं। इन हालात के अंदर जो है मुझे एक खदशा जरूर है और मैं पिछली वीडियो में भी इजहार कर चुका हूं, अगरचे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि कल दोबारा उसकी काउंटिंग होगी, एक कानूनी सवाल भी खड़ा हुआ है, उसका मैं अगली वीडियो में शायद जिक्र करूंगा। लेकिन कोई ना कोई जो डिप्टी स्पीकर है, जो मजारी है, दोस्त मोहम्मद मजारी, चूंकि वो इस वक्त नून लीग का मुकम्मल तौर पर जो है वो कारिंदा बन चुका है, तो वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है, वो कोई भी खेल खेल सकता है। इस हवाले से PTI की लीडरशिप ने साथ जोड़े हुए हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी उन पर हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कोई और अपडेट होगी उस पर भी बात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।